इतवार की दोपहर मुकाबला है पेशावर का लाहौर ब्लूज से। लाहौर ब्लूज अपनी पहली फतह हासिल करना चाहेगा, जबकि पेशावर अब तक अनबीटन है इस स्टेज में। Right, you heard it from the captains. The news is that Lahore Blues has won the toss and they will be bowling first. लाहौर ने पिछले मैच से अपने उसी प्लेइंग 11 को खिलाने का फैसला किया है, जबकि पेशावर की टीम में आ चुके हैं एक मरतबा फिर इमरान खान सीनियर और उसके साथ अब्बास अली फीचर करेंगे पेशावर की टीम में। So Lahore Blues versus Peshawar, time to play. पहली गेंद पर ऊंचा शॉट लॉन्च कर दिया है और फील्डर के सर के ऊपर से रवाना। हारिस ने जवाब दिया कि वो किस मेटल के बने हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए। फर्स्ट बॉल 6। लेकिन से गेंद उठा दिया है, गेंद हवा में लेकिन सर के ऊपर से चली जाएगी। पीछे की जाने भागे निसार, वो भी नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बाउंड्री पहले ओवर की, पहला चौका पेशावर का। हारिस को आप बहुत देर नहीं रोक सकते। गेंद पे विड्थ हासिल हुई और फौरन इस पे झपट पड़े कवर्स की जानिब अपने पहले चौके के लिए। रूम बनाकर खेलने के लिए गए और एक मरतबा फिर वो रूम बनाया अपने लिए पलट के, जो कि शायद झपट के हासिल नहीं हो रहा था। खूबसूरत चौका हारिस का और अब फ्लिक कर दिया है। पूरा खाली रीजन मौजूद है। ये देखने की चीज है हारिस की बैटिंग। बार बार देखिए, रिस्क लिया, रिवॉर्ड भी पूरा मिल रहा है हारिस को। पावर प्ले का पूरा फायदा। बैक टू बैक चौके, कदमों का इस्तेमाल, सीधा तेज तर्रार तीर की मानन छक्का ज्यादा चला गया। हारिस का दूसरा मैक्सिमम। वन मैन आर्मी बने हुए पेशावर की लाहौर ब्लूज के खिलाफ हारिस। बाप तो बैकफुट निकाला है, बड़ा लंबा चेज है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। दो फील्डर्स को बड़े खूबसूरत अंदाज से बीट करके गैप निकालने में कामयाब रहे। अंधाधुंध हिटिंग की है इस ओवर में। 19 रन दिए काशिफ ने, 36 बिना किसी नुकसान के पेशावर। लेकिन हारिस कहां रुकने वाले हैं। एज और गेंद एंड स्टंप्स के पीछे से जाती चली गई। मुख्तसर तरीन बाउंड्री, किस्मत का पूरा फायदा उठाया हारिस की ये शाम, आज के दिन एक और छक्का। और अब साहिबजादा फरहान को लॉन्च करने का मौका मिला। ये मिसाइल की मानन जाती चली जा रही है। 50 भी मुकम्मल हो गए पेशावर के। Oh wow, wow, that is all the way. Saibzada Farhan coming into action now. There is no stopping these two. Oh, there's a chance. There is definitely a chance. There is a fielder underneath and he takes it. Gladly, it's Imran Butt. Makes no mistake. He's the safest in the house. But Saibzada Farhan just looking to hit it too hard. In doing so, close the face too early. And Imran Butt judged it beautifully. Never easy in the bright sunny days, the white ball. But he spotted it nicely to send Saibzada Farhan back for 15. Peshawar, after a whirlwind start, are now 59 for 1. He's picked up nicely towards square leg all the way again. He'll find a way to hit a 6. Haris, we know what he's capable of. Oh, that's gone for a 6. Surely that's gone all the way. That's 50 for him. 8 for Haris. Fearless, flawless, fabulous Haris. Bowled him. Beautiful delivery. You needed a delivery like that to get rid of Haris. And that expressions, the celebrations, says it all. He's really been the go-to man for Hussain Talat this time, knocking over Haris's middle stump with a sensational yorker. Something special was needed to remove Haris, and this man has come up with that. That is classic T20 cricket. Haris gone for a blazing 55, 73 for 2 Peshawar. And this one, the feet have been used, but it will go straight down the throat of the fielder. Umayyad Asif there, making no mistake. And another wicket goes. A shot which wasn't required. And Lahore are now back in the game. 3 for 81. Just the first ball of the bowler. And 2 wickets have fallen in quick succession. And then you try to play a shot which is high risk.
It would have been understandable had he gone towards extra cover or straight over the head of the bowler, but he just went straight at the fielder, hoping to clear him. Gone after scoring 5 of 11 balls. You bowl a good one, that's high in the air and will cross. No, that's gone. The flight has worked, the invitation has worked, and a tall man, Umaid Asif, in that position has also worked. And again a stroke which seems really senseless. There is no point going after a bowler straight at a fielder who is placed at the boundary. There are so many gaps, it's a huge field. And now 2 batters have opted to go just with the 6 in their mind, not a single gap. And that is not good game awareness, that is not what good batters do. Oh, that's a good ball. That's a wrong one, it's been given. Some exaggerated turn now. Peshawar is staring down the barrel. Batter had no clue it was his first delivery and first up this wrong one. And it spun a long way and he wasn't sure which way the ball was going to go. So Usman Qadir has got his team in the front now. Lahore, after a pathetic start with the ball, are now ruling the game at the moment. 91 for 5 Peshawar. He's played it high on the longer side of the boundary. Trouble, trouble and gone. This is a huge wicket at this stage. 15 of 21, the captain Iftikhar has taken the man in the deep. And they've lost the 6. In fielding as well as bowling. Have a look at that, just hitting the deck hard. Was in no position to play that shot, never in control, and good catch by Rizwan. That's a big, big blow. Lahore will take it, but Peshawar are now dragging themselves out. Iftikhar gone on 15, 99 for 6. Yeah, almost around covers. That'll be a boundary. You see that urgency starts building inside you as a batter. I've played 2-3 dot balls. Let me try. इस तरह के शॉट खेलने के लिए जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हासिल करने की कोशिश है, लेकिन ये रिस्क बहुत बड़ा लिया था. बाउंड्री लाइन पे मौजूद थे काशिफ भट्टी, जो कि लगा के कुछ लम्हात में गेंद को खो गए थे मुखालिफ सिंध में सूरज में, लेकिन उन्होंने वहीं पर अपने आप को जमाए रखा, खैमा जन हुए और एक और विकेट हासिल की. और जब उस्मान अपने रिदम में हो, इनसे बेहतर लेग स्पिनर नहीं है कोई, और आज दिखाते हुए क्यों ये बेहतरीन स्पिनर हैं. काशिफ भट्टी ने आसानी से ही कैच लिया है. और मुश्किल होता है जब आप छोटी बाउंड्री की तरफ इस तरह बॉलिंग कर रहे हो, हवा देना मुश्किल होता है, लेकिन उस्मान ने आज दिलेराना तरीके से बॉल किया है. बेहतरीन बॉलिंग. अब्बास अली सिर्फ 6 गेंदों के मेहमान साबित हो सके. ऑफ द बैक फुट लंबा रास्ता दिया और पूरा फायर पावर मौजूद था इस शॉट में. नियाज लंबे छक्के लगाने की शोहरत रखते हैं और उसके शाया निशान पहला लॉन्च किया 119 पे 7. वंस अगेन छोटी बाउंड्री की तरफ उठाकर खेलने की कोशिश की. उमैद ने कैच मुकम्मल कर लिया. उनके साथ मौजूद थे रिजवान हुसैन, जिन्होंने इस कीमती कैच को मुकम्मल किया और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया आखिरी लम्हात में. हालांकि गेंद शॉट थी, बाउंड्री भी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको क्लियर न कर सके. पहले एक बार फिर छोटी बाउंड्री को क्लियर करने की कोशिश, फोर्स नहीं, क्योंकि ये बॉल बैटर से बाहर की तरफ जा रहा था और आसान सा कैच रिजवान हुसैन की जानिब से. नियाज इंप्रेस नहीं कर पाए. 7 रन बनाकर वापस जाना होगा. 122 पे 8. और गेंद एक मरतबा फिर हवा में. क्या अपनी 5वीं विकेट हासिल कर लेंगे? यस, करियर बेस्ट बॉलिंग की है. इमरान के हाथों में खेल दिया. उस्मान कादिर ने कोटे की आखिरी गेंद पर भी जाते जाते एक और विकेट हासिल कर ली. अच्छे एरिया में बॉल गिराए, कॉन्फिडेंस मिलता चला गया विकेट्स के साथ साथ, और कुछ मदद भी मिली खराब शॉट से पेशावर के बैटर्स की जानिब से. बड़े शॉट्स खेलने गए और विकेट्स गवाते चले गए. एक बार फिर बड़ी बाउंड्री को क्लियर करने गए थे, कोशिश की थी आजम ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए. 14 रन बनाकर वापस 123 पे 9. शॉर्ट बॉल मिल गई, लेकिन इसको भी खेलने में कामयाब रहे इलियास. एक चपा खाने के बाद शिद्दत से जरूरत वाले चौके के लिए चली गई. खूब पिक किया इलियास ने. यस, इलियास 2.0 अराइव्ड इन कराची. एक चपा खाने के बाद बाउंड्री लाइन की जानिब रवाना. कीमती चौके पेशावर और इलियास के लिए. फुल टॉस हासिल हो गई और सिर्फ
एक रन पे इक्तफा करना पड़ेगा। नो, वापस आ रहे हैं दूसरे के लिए और इस पर रन आउट हो जाएंगे। लेकिन अपने 20 ओवर मुकम्मल खेलने में कामयाब रही है पेशावर की टीम और इसके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ स्कोर बोर्ड पर जरूर डाला है, जो कि एक मौके पर लगता था कि शायद आज 200 भी मुकम्मल कर जाएंगे, बल्कि स्टेडियम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे रन्स बनाने का, अपना ही बनाया हुआ। और कहां एंटी क्लाइमैक्स और अपनी डगर से हटे और बिलो पार टोटल हासिल किया। बेहतरीन मौका लाहौर ब्लूज के लिए अपनी पहली फतह हासिल करने का सुपर 8 में। धुआंधार शुरुआत दी थी हारिस ने। साहबजादा फरहान ने भी 2 छक्कों के साथ नौजवान हारिस का साथ दिया था, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद हारिस भी लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब ना हो सके अपने 50 मुकम्मल करने के बाद। और वो जब तक मौजूद थे उस वक्त तक स्काई लिमिट लग रहा था, लेकिन उसके बाद से ये वापस आए जमीन पर और डबल फिगर्स में जा पाए। सिर्फ इफ्तिखार 15 और आजम 14 रन बना के। एक विकेट हासिल की उमैद आसिफ ने। उनैन शाह ने स्टार्ट किया था विकेट लेने का सिलसिला, पहले ही 2 विकेट हासिल की। 1 विकेट हासिल की कासिम अकरम ने, लेकिन उसके बाद आए उस्मान कादिर जिनके लेग स्पिन का कोई जवाब नहीं था। 5 विकेट हासिल की 14 रन देकर। 134 का बज़ाहिर आसान नजर आने वाला टारगेट है लाहौर ब्लूज को सुपर 8 के मरहले में अपनी पहली फतह हासिल करने के लिए कराची में। Right arm over, let's play. Yep. शॉट इमरान बट, शॉर्ट पिच देखी और एकदम से टूट पड़े उस पर। क्या लाजवाब आगाज है, जबरदस्त आवाज आई बल्ले से जैसे ये गेंद टकराई। बैट बॉल, खराब बॉलिंग थी, पूरा मौका मिल गया इमरान बट को और इमरान खान अपनी इस गेंद से खुश नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल एक फ्री भी थी, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई। एरियल शॉट, लेकिन ये गैप में जाएगी और 4 रन मिल जाएंगे। गेंद वहां गई नहीं जहां रिजवान खेलना चाहते थे, लेकिन नतीजे से खुश होंगे। लाजवाब जबरदस्त स्ट्रोक, इमरान बट के बल्ले से बाउंड्रीज का सिलसिला जारी है और ये सब शॉट्स में से बेहतरीन शॉट। लेकिन इस वक्त इमरान बट स्पेयर करने के मूड में नहीं है। इमरान खान जरा सा लेंथ में चूके या लाइन में, इमरान बट उन्हें पनिश कर रहे हैं हर मौके पर और एक मरतबा फिर बाउंड्री चेक होगी। लाजवाब बैटिंग इमरान बट की। इन द एयर और आउट हो गए। साहबजादा फरहान कैच करने में कामयाब हुए और इमरान खान ने सुख का सांस लिया, जो कि पेशावर को मिली पहली कामयाबी। और इमरान बट ऐसे लगता है कि वो पहले से पिछले बॉल का वेट कर रहे थे, इस अगले बॉल पे वो पूरा आए नहीं। जो टांग थी, बैट उससे बहुत आगे निकल गया और इमरान बट को जाना होगा। 24 रन बनाए, अच्छे स्ट्रोक खेले, लेकिन लंबा नहीं कर सके इस इनिंग्स को। 3 ओवर के इख्तिताम पर 32 पर 1। निकाल दिया इसे रिजवान ने, आगे गिरी हुई गेंद थी और 4 रन हासिल किए। इफ्तिखार काफी मायूस हैं और बाउंड्रीज का सिलसिला इस पावर प्ले में नहीं रुक पा रहा लाहौर ब्लूज के बल्ले से। यहां पर कट किया है उन्होंने और इस बार गैप में 4 रन बनेंगे। एक सेफ और अच्छा शॉट, और इफ्तिखार ने एंटिसिपेट किया था कि ये हिट मारेंगे तो उन्होंने तेज गेंद कर दिया, जिसको रिजवान ने बड़े अच्छे तरीके से उसकी पेस का इस्तेमाल किया। 4 ओवर्स के इख्तिताम पर 40 पे 1। Thick outside edge is just running down to third for a boundary. Catch for it! High in the air, catch it is a call and he's got under it. Just said that they should be able to finish this off in handsome style. Iftikhar takes a wicket in his second over. Would you just go bizarre, lose your wicket? Good catch by Saabzada Farhan. He had an opportunity. He'll have to walk back. 17 runs. It's 46 for 2. Yeah, he swept his way, planted his left foot in the line of the ball and swung it. Catch it!
It's in the air. There is a fielder. He takes it quite comfortably. Another wicket going down. It's Junaid. This time, the informed Junaid scored a match-winning inning in the last game, but cannot do much in this. He has to go back. Good catch by Abbas. Azam Khan getting his first wicket. You need a runner ball. I'm not saying don't try, but then why would you take a fielder on? You played it right down his throat. So many areas you could play a shot in. That's very ordinary on that occasion from Junaid. 1 of 4 deliveries, 53 for 3 now. There we go. Another one bites the dust. This is just beyond me. Trying to sweep one, exposing all 3 stumps, and Iftikhar hits bullseye. They're not learning. They're definitely not learning. Again, slow in pace. That's what Iftikhar is doing in this tournament. He's bowling according to the conditions. He knows it. He's got that experience. And he's got that control too. A poor shot by Hashim. There was no need of it. You were going fine playing in the V. 12, he scored. It's 55 for 4 now. उठाकर खेलने का मौका मिला, गेंद के नीचे आए हैं और गेंद जाती चली गई. खूबसूरत शॉट जिसको विद द टर्न खेलने की ठानी और खूब निकाला. इन द एंड बना सेफ और पावरफुल. बड़ी जरूरत थी ऐसे शॉट की. उठाकर खेलने के लिए गए और एक मरतबा फिर विद द टर्न खेलने का फैसला किया कासिम अकरम ने और हाथ खोलने का मौका मिल गया अपने साथी खिलाड़ियों कप्तान से हौसला हासिल करते हुए. पहला चौका कासिम का. Slog and a fielder there. There you go. There you go. They won't give up and they won't give in. Qasim Akram took the fielder on, but he didn't have to move an inch. Adil Amin, very, very safe pair of hands. And now half the side is back in the hut for Lahore. A nervy chase as Qasim walks back. He's gone for 10. Lahore, 81 for 5. Apish, little wide of that long on fielder. He'll come around. No, he won't. Wasn't able to cut it off. 4-2 Kashyap Bhatti. So then it forces him to play that and he's gone. That's what happens when the runs are not coming. He tried to improvise and he's just handed a dolly to Imran Khan Senior. This is now trouble for Lahore as the captain has been dismissed. Was a slow delivery, no pace on it, and just like catching practice, Imran Khan is delighted. He must have been nervous when he saw that ball coming to him, but he held on to it. Important catch, important breakthrough by Niaz. Hussain Talat walks back for 20. Lahore Blues 93 for 6. बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन बॉल थर्ड की जानिब जाएगा. यहाँ खेला नहीं चाहते थे लेकिन ये बाउंड्री लेंगे. ये 20 बॉलें लग गई है चौका हासिल करते करते. 100 रन भी मुकम्मल कर लिए लाहौर ब्लूज ने. काशिफ भट्टी एक बार फिर थर्ड के जाने. ये बेहतर है. वेट किया इस बॉल का, लेट खेले हैं और गैप में खेले हैं. 4 रन हासिल करें. ये बेहतर बैटिंग है. ऐसे और शॉट्स खेलना होंगे काशिफ भट्टी को. इस चीज का इंतजार था. ये फुल टॉस है लेग साइड पे. इसे पिक किया है. स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया है काशिफ ने. 6 रन के लिए आउट हो सकते हैं. यकीनी, जी हां, बिल्कुल विकेट के सामने. डिसीव किया है स्लोअर वन से इलियास ने. बेहतरीन चेंज ऑफ पेस. बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी. स्लोअर वन डिसीव किया, चकमा दे गए. सेंसिबल बॉलिंग, स्मार्ट बॉलिंग इलियास की जानिब से. भट्टी को वापस जाना होगा 25 रन बनाकर. 116 पे 7. शॉट लगाया, फील्डर मौजूद हैं. 2 के लिए आना चाहिए. ओह, मिस कर गए. तो कहते हैं आप टारगेट को ओवरशूट कर जाओ. इस बार इलियास से यह गलती हो गई. शॉर्टर बॉल ऊंचा आ गया है. गेंद कीपर ने कहा यह मेरा कैच होगा और आउट हो गए निसार. देखिए, उमैद आसिफ आ रहे हैं और एक बॉल पे 6 रन सुपर ओवर के लिए चाहिए. तो बात वहां आ गई जिसका आपने जिक्र किया था. शॉर्टर लेंथ पे पहला बॉल किया है, जिसको जाहिर है टेल एंडर्स के लिए इतना आसान नहीं होता कि अगर एक डिसेंट पेस हो और उसके ऊपर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हो
और हारिस जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट एज एवर, मैं कहूँगा कि हर कैच जब आसमान में जाता है तो उनकी कोशिश होती है वो पहुंच जाए। निसार आउट हो गया 8 रन बना के, 127 पे 8 खिलाड़ी आउट, एक गेंद बाकी। आखिरी गेंद 7 रन। बहुत ही अच्छा बॉल, यॉर्कर लेंथ, कुछ नहीं कर पाए उमैद आसिफ, और कहां से कहां लेकर आया है पेशावर इस मैच को। और लाहौर ब्लूज अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि ये 134 रन नहीं बना पाए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पेशावर जैसी टीम को रोक के रखा हुआ था, लेकिन पेशावर ने फाइट बैक किया और ये मैच जीत गए। अच्छा खेल रहे थे इमरान बट 24-13 गेंदों पे, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल शुरू हो गई थी। 12 रन बनाए 13 गेंदों पे हाशिम ने, 25 गेंदों पे 20 बनाए हुसैन ने, जुनेद बड़ी विकेट थी, एक ही बना पाए। कुछ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियां हुई डाउन द ऑर्डर, लाहौर ब्लूज मिस आउट कर गए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैच जीतने की। यहाँ पर पेशावर की जो टीम है वो इस टाइम अपनी सेलिब्रेशंस में मसरूफ, और उनका बॉलिंग कार्ड इस वक्त जो है इमरान खान सीनियर की शानदार बॉलिंग, बहुत ही आला आखिरी ओवर किया, 2 विकेट्स उन्होंने ली। इफ्तिखार 4 ओवर 16 रन, मिडल में काफ़ी कंट्रोल किया और 2 विकेटें भी ली इफ्तिखार ने। आजम के 4 ओवर में 22 रन, और बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया उन्होंने आखिर में न्याज को। मैच समरी पे एक नजर डालते हैं। पेशावर आज टॉस हारा था, पहले बैटिंग करने की दावत दी, परेशानी में दिखा जब एक टाइम पे इनके 90 पे कोई 5 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मैनेज किया, 133 रन बना लिए हारिस के 55 की मदद से। बैक किया अपने बॉलर्स को, इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा यूज किया स्पिनर्स, पार्ट टाइम स्पिनर्स को, और रोके रखा लाहौर ब्लूज को 128 पे, 20 ओवर पूरे खिलवा दिए। पेशावर ये मैच जीता 5 रन से, और अपने पॉइंट्स जो हैं इन्होंने स्कोर कर लिए। पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डाल लेते हैं, और अभी तक की सूरत हाल हमें बताएगी। सुपर 8 में याद रहे 4 टीमें जाएंगी सेमीज में, पेशावर सबसे ऊपर है 3 में 3 जीत के, और लाहौर की परेशानियां कंटिन्यू करती हैं। लाहौर ब्लूज 3 और तीनों के तीनों मैच उन्होंने हारे हैं।